اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ۔ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ عنوان: حج کیسے کریں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ چند مخصوص اعمال کی بجاوری کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی 3 اقسام بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد: پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت صرف حج کا احرام باندھنا اور حج کر کے احرام کھول دینا، لیکن یہ والا حج عام طور پر پاکستانی نہیں کرتے، کیونکہ روانہ ہونے کے دن سے لے کر حج کے مکمل ہونے تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر آخری فلائٹ میں بھی جائے تب بھی 8 دن تک احرام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس لیے یہ والا حج کرنا بہت مشکل ہے۔ حج قران: پاکستان سے جاتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں اور پہلے عمرہ کریں، لیکن بال نہ کٹوائیں اور احرام نہ کھولیں، کیونکہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ اب حج کر کے 10 ذی الحج کو احرام کھولیں گے۔ اس طریقے سے بھی پاکستانی حج نہیں کرتے، کیونکہ بہت دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، البتہ جو حاجی آخری فلائٹ میں جائے تب تو آسان ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 10 دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ حج تمتع: تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی پاکستان سے صرف عمرے کا احرام باندھے، پھر جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج کو جب مینا جائے گا تو حج کا احرام باندھے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حج تمتع میں صرف 4 دن تک احرام باندھنا پڑتا ہے، 1 دن عمرے کا، اور 8، 9 اور 10 ذی الحج کو حج کا احرام باندھنا پڑے گا۔ اور اس فائدے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں یوں ارشاد فرمایا ہے: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ زیادہ تر پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان طریقہ ہے۔ تربیت: چونکہ پہلے عمرہ ہوتا ہے اس لیے پہلے عمرے کو سمجھ لیں۔ عمرے کے اندر کل 4 کام ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ شرط ہے جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 طواف کرنا، یہ رکن ہے۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 4 سر منڈوانا یا بال کتروانا، یہ واجب ہے۔ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ: گھر سے غسل کر کے عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں، وہاں پہنچ کر وضو کریں، 2 چادریں احرام کی باندھ لیں، ہوائی چپل یعنی جسے قینچی چپل کہا جاتا ہے وہ پہن لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھیں۔ پھر زبان سے عمرے کی نیت کریں، اردو عربی دونوں میں نیت کر سکتے ہیں۔ عربی کے الفاظ کچھ یوں ہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یعنی اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ نیت و تلبیہ پڑھنے کے ساتھ احرام بن گیا، یعنی ایک عمل مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے، یہ احرام کا لباس ہے۔ ان 2 چادروں کے اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے، احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کو،
और एहराम खोलना कहते हैं सर मुंडवाने या बाल कुतरवाने को। इससे एहराम खुल जाएगा। औरतों के एहराम बांधने का तरीका। नंबर 1, वो औरत जो नमाज पढ़ सकती हो। औरत के लिए एहराम का कोई लिबास मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता सर के ऊपर चादर ना ओढ़े बल्कि रुमाल बांधे और अबाया पहने और चेहरे पर पी कैप पहने यानी छज्जे वाली टोपी। औरत एयरपोर्ट पर पहुंचकर वुजू करे और औरतों की नमाज पढ़ने की जगह पर जाकर 2 रकात नफल पढ़े, उम्रे की नियत करे और 3 बार तलबिया पढ़े। अब औरत के उम्रे का एहराम बंध गया। नंबर 2, वो औरत जो नमाज न पढ़ सकने की हालत में हो। ये औरत एयरपोर्ट पहुंचकर अपने सोफे पर बैठे बैठे उम्रे की नियत करे और 3 बार तलबिया पढ़े, बस उसका एहराम बंध गया। एहराम बांधने के बाद मर्द औरत पर 7 तरह की पाबंदियां लाजिम होती हैं, जो कुछ यूं है। नंबर 1, मर्द एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन औरत पहन सकती है। नंबर 2, मर्द एहराम की हालत में अपना चेहरा और अपना सर नहीं ढांपेगा और खवातीन अपना चेहरा स्कार्फ से ढांपेंगे और चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देंगी और पी कैप पहनकर पर्दा करेंगे। नंबर 3, मर्द औरत एहराम की हालत में हाथ पांव के नाखून नहीं काटेंगे। नंबर 4, मर्द औरत एहराम की हालत में बाल नहीं काटेंगे। नंबर 5, मर्द औरत एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगाएंगे और न ही खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, मर्द एहराम की हालत में दस्ताने, मोजे, जराबे, बंद जूते नहीं पहन सकते, जबकि खवातीन यह सब पहन सकती हैं। और नंबर 7, अगर मियां बीवी इकट्ठे हज उम्रा कर रहे हैं तो एहराम की हालत में अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। ये पाबंदियां हज तमत्तु में सिर्फ 4 दिन है और बाल टूटने या दाढ़ी पर हाथ फेरते वक्त हाथ में बाल आ गए तो सदका दें, और अगर बाल टूटे या खारिज की और बाल झड़ गए तो उससे कुछ वाजिब नहीं होता, आप जितना चाहें सदका अदा कर सकते हैं। तवाफ करना। तवाफ करने का तरीका। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अपनी रिहाइशगाह होटल पर आराम करें, क्योंकि आपको घर से चले हुए 20 या 22 घंटे हो चुके होंगे। खाना खाएं, ताज़ा दम होकर तवाफ को जाएं। तस्बीह तवाफ यानी 7 दानों वाली तस्बीह और एक गले वाला बैग और एक थैला जूता रखने के लिए साथ रखें। इसके अलावा कोई चीज अपने साथ न रखें। जब मस्जिद हराम में दाखिल हों तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और नफली एहतिकाफ की नियत करें और फिर तलबिया पढ़ते हुए अदब से खाना काबा की तरफ जाएं। खाना काबा को देखकर हाथ उठाएं और दुआ मांगे। हमारे मशाइख ने फरमाया है कि ये दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, मैं जो भी दुआ मांगू वो कबूल फरमा। दुआ मांगने के बाद देखें कि सब ट्यूब लाइट्स कहाँ लगी हैं, क्योंकि वहां से तवाफ शुरू करना है। सब ट्यूब लाइट से चंद कदम पहले रुक जाएं। अब मर्द हजरात 3 काम कर लें। नंबर 1, तलबिया पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि उम्रा करने वाला तवाफ से पहले तलबिया बंद कर देता है। औरत भी तलबिया बंद कर दे। नंबर 2, मर्द औरत उम्रे के तवाफ की नियत करें। और नंबर 3, मर्द इस्तिबा करें, यानी अपने दाएं कंधे के ऊपर से अपनी चादर हटाकर दाएं बगल के नीचे से निकालकर उसका किनारा बाएं कंधे पर डाल लें। फिर सब ट्यूब लाइट्स के पास इस तरह खड़े हो जाएं कि मर्द और औरत दोनों के बिल्कुल पुश्त के पीछे सब ट्यूब लाइट्स हों और इस हालत में उनका चेहरा बिल्कुल खाना काबा की जानिब हो। इसी तरह खड़े खड़े 3 काम करने हैं। नंबर 1, हजर अस्वद का इस्तिकबाल। नंबर 2, हजर अस्वद का इस्तिलाम। और नंबर 3, तवाफ का आगाज। हजर अस्वद का इस्तिकबाल। इसका तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा की तरह दोनों हाथ उठाएं और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें। नंबर 2, हजर अस्वद का इस्तिलाम। मर्द औरत दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं, इस तरह के हथेलियों का रुख खाना काबा की तरफ हो और एक मर्तबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें और अपने हाथों को चूम लें और छोड़ दें। ये इस्तिलाम हो गया। नंबर 3, तवाफ का आगाज। वहां खड़े खड़े तवाफ शुरू कर दें, इस तरह कि आपके दाएं कंधे की जानिब सब ट्यूब लाइट्स हों और बाएं कंधे की जानिब खाना काबा हो। अब तवाफ शुरू करें। जब घूमकर सब ट्यूब लाइट के सामने आएंगे तो 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और इसी तरह के 7 चक्कर लगाने से 1 तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल तवाफ में वुजू कायम रखना वाजिब है। अगर 5वें चक्कर में वुजू टूटा तो वुजू करके बाकी चक्कर मुकम्मल कर लें और अगर इससे पहले वुजू टूटे तो फिर नए सिरे से तवाफ करना होगा। मर्द के लिए हर तवाफ में जिसके बाद सही हो उस तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है। रमल का तरीका यह है कि अकड़कर दोनों कंधों को हिलाकर छोटे छोटे कदम उठाकर चलना। तवाफ के दौरान कोई खास दुआएं मनकूल नहीं
किताबों में हर चक्कर के लिए दुआएं लिखी हैं। ये सारी दुआएं मसनून हैं, हदीस से साबित हैं, लेकिन तवाफ के चक्करों में पढ़ना मनकूल नहीं है। उलमा व मशाइख ने लोगों की सहूलत व फायदे के लिए जमा कर दी हैं। कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 6 कलमे भी पढ़ सकते हैं। 7 चक्कर हो गए। हर चक्कर के इख्तिताम पर हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस तरह के जब सब ट्यूब लाइट्स के पास पहुंचे, हाथों को कंधों तक उठाकर इस्तिलाम करें और दुआ पढ़ें। ये कुल 8 इस्तिलाम हो गए। अब मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ें। ये जिंदगी की अजीब व गरीब नमाज होती है। पहले खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब खाना काबा बिल्कुल सामने है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, ये जिंदगी की कैसी अजीब व गरीब नमाज है। पहले खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब खाना काबा यानी बैतुल्लाह निगाहों के सामने है। इसके बाद जमजम खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके पिएं और खूब दुआएं मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी पीकर जो दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। सफा व मरवा की सई का तरीका। अब सई करें, यानी खाना काबा के पास 2 पहाड़ियां हैं, उन दोनों के दरमियान चलने को सई कहते हैं। सई का आगाज सफा पहाड़ी से होता है। सई के लिए जाने से पहले सब ट्यूब लाइट्स के पास आएं और हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। यह इस्तिलाम करना सुन्नत है। यह हजर अस्वद का इस्तिलाम नंबर 9 है। अब सफा पहाड़ी की जानिब जाएं। पहाड़ी पर खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआएं मांगे। फिर सफा से मरवा की तरफ जाएं। ये 1 चक्कर हो गया। फिर मरवा पहाड़ी से सफा की तरफ आएं, ये दूसरा चक्कर हो गया। फिर सफा से मरवा की तरफ जाएं तो ये तीसरा चक्कर हो गया। इसी तरह 7 चक्कर लगाएं। सई का आगाज सफा से होता है और इख्तिताम मरवा पर होता है। अब सई मुकम्मल हो गई। सई के अंदर वुजू लाजिम नहीं है, बगैर वुजू भी सई करना जायज है। यह अहम तरीन बात है, लोग बहुत फायदा उठाते हैं। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, यहां पर एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले, ये बहुत फायदे की बात है। सई के अंदर वुजू लाजिम नहीं है, बगैर वुजू भी सई करना जायज है। ये अहम तरीन बात है, लोग बहुत फायदा उठाते हैं। सई करते वक्त 2 सब्ज निशानों के दरमियान मर्दों के लिए जरा तेज चलना सुन्नत है, ये औरतों के लिए नहीं है। सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना। मर्दों के लिए सर के बाल मुंडवाना और कुतरवाना जायज है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। अगर मर्द के सर के बाल 1 पोरे यानी 1 इंच से ज्यादा हो तो वो अपने सर के बाल 1-1 इंच कुतरवा सकता है। अगर बाल 1 इंच या इससे कम है तो बाल मुंडवाना वाजिब है। औरतों के लिए सर के बाल जो पुश की तरफ लटके हुए हैं, उसके सारे कोने इकट्ठे करके लटके हुए बालों में से 1 इंच काट दें। अल्हम्दुलिल्लाह, एहराम खुल गया और उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हज तमत्तु के अहकाम। ये कुल 14 आमाल हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। नंबर 1, उम्रे का एहराम बांधना ये शर्त है। नंबर 2, उम्रे का तवाफ करना ये रुकन है। नंबर 3, उम्रे की सई करना ये वाजिब है। नंबर 4, सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना ये वाजिब है। उम्रा मुकम्मल करने के बाद एहराम खुल जाएगा और 8 जिलहज तक बगैर एहराम के आम कपड़ों में रहेगा। नंबर 5, 8 जिलहज को हज का एहराम बांधना यह शर्त है। नंबर 6, वकूफ आराफा ये फर्ज है। नंबर 7, वकूफ मुज़दलिफा ये वाजिब है। नंबर 8, जमरे अक़बा की रमी करना ये वाजिब है। नंबर 9, कुर्बानी करना ये असल में दमे तमत्तु है, ये वाजिब है। नंबर 10, सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना ये वाजिब है। नंबर 11, तवाफ़े ज़ियारत करना ये फर्ज है। नंबर 12, इस तवाफ के बाद हज की सई करना ये वाजिब है। नंबर 13, तीनों जमरात की रमी करना ये वाजिब है। और नंबर 14, तवाफ वदा यानी अलविदाई तवाफ करना ये वाजिब है। हज करने का तरीका। मनासिक हज को तरतीब से याद रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि हज के कुल 5 दिन होते हैं। हर दिन के बारे में ज़हन नशीन कर लें कि आज की तारीख में क्या क्या काम करने हैं। हज का पहला दिन 8 जिलहज का दिन। इस दिन में सिर्फ एक काम करना होता है। सिर्फ मक्का मुकर्रमा में जहां कहीं ठहरे हुए हैं उसी होटल से हज का इहराम बांधें और मीना तशरीफ ले जाएं। आज का पूरा दिन मीना के अंदर खैमे में गुजारें। मीना जाते वक्त अपना सारा सामान मक्के में छोड़कर जाएं। सिर्फ एक छोटा सा बैग उठाकर ले जाएं जिसमें फौरी जरूरत की अशिया हो। भारी सामान बिल्कुल न लेकर जाएं।
इसलिए कि यह बैग उठाकर 6-7 किलोमीटर पैदल चलना है। हज का एक दिन पूरा हो गया। एहराम का मुकम्मल तरीका पहले बयान हो चुका है। जहां आप मक्के में ठहरे हुए हैं वहीं से एहराम बांधें। हज का दूसरा दिन यानी 9 जिलहज का दिन। आज के दिन 2 काम करने हैं। नंबर 1 वकूफ अरफा, ये फर्ज है, और नंबर 2 वकूफ मुज़दलिफा, ये वाजिब है। वकूफ अरफा का तरीका। आज फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद अपने हज ग्रुप के साथ बसों में बैठकर मैदान अरफात रवाना हो जाएं। वकूफ अरफा को मुकम्मल समझने के लिए 3 बातें ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1 वकूफ अरफा क्या होता है। नंबर 2 वकूफ अरफा का वक्त कितना होता है, और नंबर 3 वकूफ अरफा के दौरान क्या करना चाहिए। नंबर 1 वकूफ अरफा क्या होता है। वकूफ का माना है ठहरना और अरफा का माना मैदान अरफात, लिहाजा वकूफ अरफा का माना है मैदान अरफात में जाकर ठहरना। बस यही फर्ज था जो अदा हो गया। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, यही वजह है कि जितने अस्पताल में हाजी होते हैं और वो एक ही वक्त में स्ट्रेचर समेत मरीजों को ले जाते हैं, फिर फौरन वापस ले आते हैं, उनका फर्ज अदा हो जाता है। अगर वो ज्यादा ही बीमार है तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाते हैं और एक खास मकाम पर हेलीपैड पर उतारते हैं और फौरन वापस ले जाते हैं। उस मरीज का फर्ज अदा हो जाता है। हत्ता कि बाज मरीज बेहोश भी होते हैं, उनका जो फर्ज था वो अदा हो गया और वाजिब माजूर होने की वजह से साकित हो गया। सुभान अल्लाह। नंबर 2 वकूफ अरफा का वक्त कितना है। जवाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में रहना वाजिब है। और नंबर 3 वकूफ अरफा में क्या करना होता है। आज 9 जिलहज है और आज फजर की नमाज से लेकर 13 जिलहज की असर की नमाज के बाद तक हर मर्द और औरत पर हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। ये कुल 23 नमाजें हो जाएंगी। दूसरी बात यह कि अगर आप हज के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे यानी मस्जिद नमीरा में, तो जोहर के वक्त में जोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके फौरन बाद जोहरी के वक्त में असर की नमाज पढ़ेंगे। ये जमा तक़दीम कहलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैदान अराफात में जायज़ है। लेकिन आजकल हाजी हजरात को बहुत ज्यादा रश होने की वजह से अपने अपने खैमों में बाजमात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अगर हाजी साहब अपने खैमे में बाजमात नमाज पढ़ेंगे या अकेले नमाज पढ़ेंगे तो दोनों नमाजें यानी जोहर की नमाज जोहर के वक्त में और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे। तीसरी बात यह कि इसके अलावा जो वक्त बचे उसमें खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मांगे, मुनाजात करें। मर्दो हजरत खैमों से बाहर निकलकर क़िबला रुख होकर दोनों हाथों को उठाकर दुआएं मांगे। जब थक जाए तो खैमे में आकर दुआएं मांगे। 9 जिलहज के दिन दूसरा काम वकूफ मुज़दलिफा है। वकूफ मुज़दलिफा का तरीका। जब सूरज गुरूब हो जाए तो अब मैदान अरफा से निकलकर मुज़दलिफा रवाना हो जाए। वकूफ मुज़दलिफा के मुतालिक अहम बातें। नंबर 1 वकूफ मुज़दलिफा क्या होता है, और नंबर 2 वकूफ मुज़दलिफा का वक्त कितना है। वकूफ मुज़दलिफा क्या होता है। मैदान मुज़दलिफा में जाकर ठहरना, इसी से वाजिब अदा हो जाता है। नंबर 2 वकूफ मुज़दलिफा का वक्त कितना है। वकूफ मुज़दलिफा का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने तक है। इतने वक्त में कुछ ठहरना वाजिब है, मुकम्मल वक्त ठहरना वाजिब नहीं है। अब आज मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब के वक्त में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और एक इकामत के साथ पढ़ेंगे। पहले 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और अदा की नीयत के साथ पढ़ेंगे, ना कि क़ज़ा की नीयत से। उसके बाद 2 रकात इशा की नमाज अदा करेंगे, फिर अपने अपने 3 वितर अदा करेंगे। इशा का वक्त सुबह सादिक तक रहता है। जब मगरिब और इशा की नमाज पढ़ लें तो मुज़दलिफा के मैदान से हर हाजी मर्द और औरत 70 कंकरियां चुन लें और अपने थैले में महफूज कर लें। ये कंकरियां शैतान को मारने के लिए हैं। ये कंकरियां मटर के दाने के बराबर और खजूर की गुठली से छोटी होनी चाहिए। मुज़दलिफा से ही चुन लें, क्योंकि आगे जाकर आपको कंकरियां नहीं मिलेंगी। बाकी वक्त जो मिले तो सुबह सादिक तक सो जाएं। जब सुबह सादिक हो जाए तो अजान देकर अपने साथियों के साथ फजर की नमाज बाजमात अदा करके दुआएं मांगे। वकूफ मुज़दलिफा खुद बखुद अदा हो गया। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहे कि बड़े बड़े ग्रुप यह गलती करते हैं कि रात को चले जाते हैं और अगले दिन के काम कर लेते हैं। उनका वकूफ मुज़दलिफा नहीं होता। उन सब पर एक एक दम वाजिब हो जाता है, क्योंकि अभी तक वकूफ मुज़दलिफा का वक्त शुरू ही नहीं हुआ। वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से और ये वहां से पहले ही चले गए। हज का तीसरा दिन यानी 10 जिलहज। आज के दिन 3 काम करने हैं। नंबर 1
सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, यानी जमरा अक़बा पर, और कंकरियां मारने के लिए जाने से पहले तलबिया पढ़ना बंद कर दें। नंबर 2, कुर्बानी करना यानी दमे तमत्तु अदा करना। और नंबर 3, सर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना। सर के बाल मुंडवाने के फौरन बाद एहराम खुल गया और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ ज़ियारत ये फर्ज है और इसके लिए 3 दिन है, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज। 10 ज़िलहज को फजर से लेकर 12 ज़िलहज को गुरूब से पहले तक कर सकते हैं, लिहाजा इन दिनों में जब भी फुर्सत मिले तवाफ़ ज़ियारत कराएं। तवाफ़ ज़ियारत का तरीक़ा। अब आप आम कपड़े पहने हुए हैं, एहराम में नहीं है। अब आप मक्के में जाकर तवाफ करें, 2 रकात नमाज नफल वाजिब तवाफ अदा करें, सई करें और वापस मीना आ जाएं। हज का चौथा दिन यानी 11 ज़िलहज। आज के दिन सिर्फ एक काम करना है और वो है तीनों जमरात पर 7 कंकरियां मारना। आज की रमी का वक्त ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक है और सूरज गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक है। याद रहे कि हाजी के लिए हज के इन 5 दिनों में रात उसी दिन के ताबे होती है, ना कि अगले दिन के। असर या मगरिब के बाद सुकून से जाएं और रमी कराएं। सर वगैरह मुंडवाने से हाजी असर तक फारिग हो जाता है और असर से लेकर अगले दिन तक जोहर तक फारिग है, लिहाजा अब आराम से जाएं और तवाफ़ ज़ियारत कराएं। हज का 5वां दिन यानी 12 ज़िलहज। आज के दिन भी सिर्फ एक ही काम करना है और वो है तीनों जमरात की रमी, और उसका वक्त भी ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक, फिर गुरूब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक है। आज के दिन जमरात की रमी करने के बाद अपना सामान लेकर मक्के में अपने होटल में आ जाएं। सवाल, मुज़दलिफा से हमने 70 कंकरियां उठाई थीं, उनमें से 21 कंकरियां बच गई हैं, उनका क्या करें? जवाब, 12 ज़िलहज को रमी करने के बाद मक्के में अपनी रिहाइशगाह पर आ जाना होता है। अगर कोई हाजी मक्के में अपनी रिहाइशगाह पर ना आया और 13 ज़िलहज को फजर की अजान के बाद वहां मीना में रहा तो 13 ज़िलहज की कंकरियां भी वाजिब हो जाएंगी। और अब जो 21 कंकरियां बाकी बची हैं उनसे रमी करें, और अगर फजर की अजान से पहले मक्के जा रहे हैं तो ये 21 कंकरियां उधर ही फेंक दें। अब सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है अलविदाई तवाफ। अलविदाई तवाफ। जब वतन वापस आने लगे तो उससे 6-7 घंटे पहले अलविदाई तवाफ करके फारिग हो जाएं। अलविदाई तवाफ करने का तरीका। बगैर इहराम के आम कपड़ों में बगैर रमल किए, बगैर सई के वुजू करके सिर्फ 7 चक्कर मुकम्मल कर लें, फिर 2 रकात वाजिब तवाफ अदा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हज मुकम्मल हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। यहां एक अहम मसले को ज़हनशीन रखिए। मोहतरम सामईन नाज़रीन किराम, यहां एक अहम मसले को ज़हनशीन रखें। बहुत से हाजी ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से हज का एहराम बांधते हैं, वहां जाकर देखा देखी उम्रा करके एहराम खोल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, उन पर दम वाजिब हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ उम्रे का एहराम बांधें, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर है कि हम हज करने जा रहे हैं, दुआ करना हमारे लिए, इसलिए यह हज का एहराम हो जाएगा। आप सिर्फ उम्रे का एहराम बांधें। हज इफराद के आमाल ये कुल 11 हैं। नंबर 1, एहराम बांधना, ये शर्त है। नंबर 2, तवाफ़ क़ुदूम करना, ये सुन्नत है। नंबर 3, वक़ूफ़ अरफ़ा, ये फ़र्ज़ और रुकन है। नंबर 4, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये वाजिब है। नंबर 5, रमी जमरा अक़बा, ये वाजिब है। नंबर 6, कुर्बानी, ये हज इफराद करने वाले पर वाजिब नहीं होती। इख्तियार है, करेगा तो सवाब, वरना वाजिब नहीं, इसलिए कि मनासिक हज में कुर्बानी शामिल नहीं। नंबर 7, सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना, ये वाजिब है। नंबर 8, तवाफ़ ज़ियारत करना, ये फ़र्ज़ और रुकन है। नंबर 9, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना, ये वाजिब है। नंबर 10, तीनों जमरात की रमी करना, ये वाजिब है। और नंबर 11, तवाफ़ वदा करना, ये वाजिब है। हज इफराद में उम्रा नहीं करना, बाकी तरीका वही है, और कुर्बानी भी वाजिब नहीं है, अगर कर लें तो सवाब होगा। हज क़िरान के आमाल, ये कुल 13 आमाल हैं। नंबर 1, हज उम्रा दोनों का एहराम बैक वक्त बांधना, ये शर्त है। नंबर 2, उम्रे का तवाफ करना, ये फ़र्ज़ है। नंबर 3, उम्रे की सई करना, ये वाजिब है। अब बाल नहीं मुंडवाएगा या कुतरवाएगा और एहराम नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने हज का एहराम बांधा हुआ है। नंबर 4, तवाफ़ क़ुदूम करना, ये सुन्नत है। नंबर 5,
इस तवाफ के बाद हज की साई कर लेना ये वाजिब है। नंबर 6 वकूफ अरफा, ये फर्ज है। नंबर 7 वकूफ मुज़दलिफा, ये वाजिब है। नंबर 8 जमरे अक़बा की रमी करना, ये वाजिब है। नंबर 9 कुर्बानी करना, ये असल में दमे क़िरान है। जो हज क़िरान करता है ये उस पर वाजिब है। नंबर 10 सर मुंडवाना या बाल कुतरवाना, ये वाजिब है। नंबर 11 तवाफ़े ज़ियारत करना, ये फर्ज है। नंबर 12 तीनों जमरात की रमी करना, ये वाजिब है। और नंबर 13 अलविदाई तवाफ करना, ये वाजिब है। हज में उम्रा करने के बाद ना ही बाल कटवाने हैं और ना ही एहराम खोलना है। 10 ज़िलहज को दमे क़िरान की कुर्बानी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको हज करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। आपसे इल्तिमास है कि आप जब भी हज उम्रा के लिए जाएं तो हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।